pull, push, lift. I guess 4-day split is something जिसे मैं कह सकता हूँ कि it is gonna work out. Overtraining is the real thing, don't get me wrong. डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली इन यंग पीपल गेटिंग हार्ट अटैक्स. If you are not training any of your systems, your strength, your muscles, your cardiovascular, your likelihood of having a heart attack from sitting and drinking 8 cups of coffee is far higher. As a beginner, if you focus on two things, protein intake, second thing is fiber. Yeah. I'll give an example of a perfect split that I use for athletes and clients that are beginning mostly. वेलकम बैक. आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक है बिकॉज आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में. इन दिस एपिसोड आई एम टॉकिंग टू 3 पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस. अब फिटनेस को लेकर ना मैं पर्सनली बहुत पैशनेट हूँ, तो इस वीडियो से मेरा यही गोल था कि मैं आपको एक ऑलराउंडेड व्यू दे पाऊँ कि अगर आपको अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, जिम स्टार्ट करना है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो. इस वीडियो को पूरा देखना. मैंने वीडियो को छोटा रखा है ताकि आप वीडियो को पूरा देखो एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड वन मोर थिंग, आई एम ऑन अ मिशन टू 100K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल इन द नेक्स्ट 6 months, and for that I need your help. If you are someone who has ever enjoyed any one of my videos and learned something from them, please hit that subscribe button. It helps me massively. Awesome. Thank you so much. I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. तो भाई अगर मैं जिम जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो व्हाट कैन बी अ गुड वर्कआउट स्प्लिट? Yeah, so going back to our components of SNC training, I do full body training only as an athlete. That's all we did because my primary time is not in the gym, right? It's on the tennis court. So the way I planned it in the beginning when I first started was keep things extremely basic. Pull, push, lift. So if you are squatting, if you are doing a pull exercise like a lat pull down or a band pull apart for your back, and you're doing a chest press or a push up for your push exercise, that's plenty. If you have 15 minutes in your day, I would tell a client squat 3 sets for me, lunge 3 sets for me, push something, pull something, and you're good to go. Doesn't take more than that. And if you do that 3 times a week and you walk/run once a week, that's more than enough. एक बड़े पार्ट को अलग, जैसे बिग मसल्स जिसे हम लोग कहेंगे, जो बहुत बड़ी मसल्स हमारे हैं, लाइक बैक, लेग्स एंड चेस्ट, ये 3 काफ़ी बड़ी मसल्स होती है. एंड बचा बाइसेप्स एंड शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स, बेसिकली आर्म्स जिसे हम कहते हैं. तो आई थिंक आर्म्स इज़ समथिंग जिसे आप एक अलग डे ट्रेन करना चाहिए. बाइसेप चेस्ट को अलग दिन, अपना बैक को और लेग्स को अलग दिन. तो आई गेस 4-day स्प्लिट इज समथिंग जिसे मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ गोना वर्क आउट. ठीक है, बिकॉज एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट प्रोवाइड करेगा वो मसल्स को. Vidika, on a side note, we see these Instagram reels saying कि 20-year-old student or kid dies due to heart attack. Can it be a result of overtraining also? See, there's very little evidence of that happening. It has happened. I'm not saying it hasn't. But here we go back to training in increments. Overtraining is the real thing, don't get me wrong. But if you compare that to someone who's sedentary and is dying because of a heart attack or because of some other reason, that group or that population of people is a lot more compared to someone who's training and has a heart attack. And the reason why I say that is if you are not training any of your systems, your strength, your muscles, your cardiovascular, your likelihood of having a heart attack from sitting and drinking 8 cups of coffee is far higher than you going to the gym and actually working towards building a stronger body and mind. So I'm not saying it's entirely impossible for that to happen because we've seen that it's happened before. But it goes back to the idea of training in increments, finding someone you trust, making sure that you're doing things the right way instead of trying to become Arnold in one day. डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली इन
young people getting heart attacks, which is so painful to watch. मतलब मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है देख के. But I'll give you a little bit of an idea कि heart attack का process कैसे होता है हमारी body में. So हमारी arteries होती है, ये हमारी arteries है for example, ये हमारी heart की arteries है. जब हम एक बहुत high saturated, high trans fat diet consume करते हैं, तो ये जो arteries होती है ना, यहाँ पे plaque deposition हो जाता है boundaries पे. अब imagine करो that your heart has to pump blood to your entire body, and इतने में से पंप करना, एंड बिकॉज ऑफ द प्लाक डिपोजिशन इतने में से पंप करने, कितना प्रेशर लगेगा ब्लड को पंप करने में. एंड दिस इज, इसको जो ये जो प्लाक डिपोजिशन होता है इसको मेथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, एंड ये रीज़न होता है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आता है. सो 100% डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. इंडियंस की बहुत ज़्यादा बीफ और मीट कंजम्पशन नहीं है, बट बाहर हार्ट अटैक्स का रेट इज़ मच हायर देन व्हाट इट इज़ इन इंडिया, क्योंकि बाहर रेड मीट कंजम्पशन बहुत है. करेक्ट. तो हाई सैचुरेटेड और हाई ट्रांस फैट डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. एंड क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हमारा हार्ट रेट ऊपर जाता है एक्सरसाइज करते हुए, एंड देन योर हार्ट कैन नॉट हैंडल इट बिकॉज ऑफ ऑल द प्लाक डिपोजिशन इन योर आर्टरीज. Vedika, my audience is people from 18 to 32 years of age, right? Correct. So should they train exactly the same way, or how should they split their workouts? If you could share something with them. Yeah. I'll give an example of a perfect split that I use for athletes and clients that are beginning mostly. Full body cardio day. That's how I split it for most people. Now, when it comes to full body training, like we mentioned earlier, your legs, you're pushing and you're pulling. 3 things that you want to focus on. So day 1, what I would do would be squat, lat pull downs, push-ups. Easy. And then you can add your accessories and your exciting exercises to it. But let's keep that as our 3 main exercises. The second day, similar concept, different exercises. Lunge, maybe do an RDL for your hamstrings or a Swiss ball ham curl for your hamstrings. Again, we're going to go into push-pull. You can do a bench press and you can do, say, a bent over row for your back. Same concept. Third day, your cardio. Now that we're starting with a beginner or someone who's just getting into your training, start with walking, build up to a 10,000 step capacity, and then start running. Then you can start running. If you're doing it on a treadmill, the only advice I would give you is do it on a slight incline, maybe a 1.5 incline, and follow the same process. That's it. यार जब हम जिम जाने की बात करते हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट, जो हम लोग मिस कर देते हैं, बिकॉज वी ओवर एस्टिमेट जो जिम का जो वर्कआउट है उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है, उसको हम ज़्यादा मान लेते हैं जितना वो नहीं होता. तो अगर हम डाइट की बात करें तो आपके हिसाब से, एक्सपीरियंस से, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट जो कि होने चाहिए फॉर अ बिगनर? सो आई थिंक जब हम लोग बेसिक्स की बात करते हैं, फॉर मी फर्स्ट एज अ बिगिनर इफ़ यू फोकस ऑन 2 things, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज़ प्रोटीन इनटेक, सेकेंड थिंग इज़ फाइबर. ओके, जब आप अपनी स्टेज में एंटर करते हो, जिम जब आप स्टार्ट करते हो, तो इफ़ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज 2 things, येस डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. लोग कहेंगे फैट्स भी, कार्ब्स भी कट करने होते हैं, बट यू नो आई थिंक you should add these 2 things first, fiber and protein, because आप कट करने पे लग जाओगे कि हाँ मेरे को, because dieting is not stopping yourself to eat certain things. okay, लोग उसको बहुत ज़्यादा ऐसा ले लेते हैं दिमाग में कि यार डाइट करना पड़ेगा तो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो अभी उन्होंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, बट मेंटली वो अपने दिमाग में बनाए थे कि इट इज़ अ वेरी टफ टास्क. इट इज़ नॉट. ठीक है, लोगों के दिमाग में ये भी है कि डाइट की जो चीज़ें हैं ना, दैट मीन्स उबली हुई चीज़ें सिर्फ. सो आई रियली डोंट थिंक सो कि ये उबली हुई चीज़ें ही खाई जा सकती है डाइट में. बहुत फैक्टर्स होते हैं हर चीज़ का. तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग बिगिनर, एज अ बिगिनर अगर हम लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक प्रोटीन इनटेक और फाइबर इनटेक हमें 2 चीज़ें रखना चाहिए, बिकॉज इन 2 चीज़ों को बना के एक मसल बिल्ड होता है. मसल ग्रो तब करेगा जब आपका प्रोटीन एंड फाइबर इनटेक अच्छा रहेगा. फाइबर हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स एंड प्रोटीन हेल्प्स इन
synthesize amino acids through your muscles, ठीक है. So it helps in growing it. बट जो नर्चर जो करता है वो आपका फाइबर इनटेक करता है, ठीक है. देन सेकेंड स्टेज इज लाइक यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ योर कार्ब्स एंड फैट्स, ठीक है. मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जाते ही कुछ चीज़ें आपको कम करनी है. आई वुड सजेस्ट कि आप 2 चीज़ें बढ़ाओ, ठीक है. हर चीज़ को अपना एक हिट एंड ट्रायल देके व्हाट सूट्स योर बॉडी द बेस्ट, ठीक है. बिकॉज आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों के पास काफ़ी इश्यूज आ रहे होते हैं कि सर हमें लोग कीटो के डाइट के ऊपर बहुत आपने सुना होगा. कीटो डाइट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है. तो कीटो की ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग शिफ्ट कर रहे हैं without knowing if it will suit their body type or not. Just because it is a trend, that doesn't mean you have to be a part of it. ठीक है. So I guess you should know what works for you the best. Either it is carbs or it is fats. दोनों का काम एनर्जी प्रोवाइड करना है बॉडी को, ठीक है. आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी पर्टिकुलरली बॉडी टाइप, अगर मैं सिर्फ अपने ऊपर बात करूं तो मेरी पर्टिकुलर बॉडी टाइप इज़ वाटर होल्ड ज़्यादा करती है वो. तो जैसे ही मैं कार्ब्स इंटेक इंक्रीज़ करता हूँ, अपना कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक इंक्रीज़ होते ही मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करने लगती है. तो इसीलिए मैं अपने कार्ब्स मॉडरेट रख के फैट्स पे फोकस करता हूँ, जिससे कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रहे मेरे अंदर. फैट्स का एक फ़ायदा ये है कि इफ़ यू आर लूजिंग वेट, लोग कहते हैं ना कि फैट्स नहीं खाना चाहिए, फैटी, बट यू नो फैट्स इज़ गुड वाइल यू आर लूजिंग वेट. फैट्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि फैट्स जो वेट लॉस के टाइम पे जो काम आते हैं, वो वेट लॉस कैसे होगा जब आप एक कैलोरिक डेफिसिट में खाओगे, ठीक है. कैलोरिक डेफिसिट में आप तब खाओगे जब आपको भूख कम लग रही होगी. भूख कम तब लगती है आपको जब आप फैट्स, क्योंकि डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, तो काफ़ी लॉन्गर रन तक वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है. बट अगेन दैट डजेंट मीन कि वो आपकी बॉडी टाइप के लिए करेक्ट है. यू शुड गिव एवरीथिंग अ ट्राई. कार्ब्स आप इंक्रीज करके देखो, फैट्स आप इंक्रीज करके देखो, कुछ चीज़ कम करके देखो. यू विल गेट टू नो व्हाट सूट्स योर बॉडी द बेस्ट. Can you tell me in what scenario would you suggest someone to do SNC training as opposed to weight training? Are they similar? What differences are there? And when should somebody opt for one or the other? Yeah, it's a good question. If you watch my content, you'll know that I promote SNC training very explicitly. And I've gotten a lot of hate for it, but I'll try to explain it in this way. See, as an athlete, SNC is what you have to do simply because it's the qualities that you require for your sport. For example, as a tennis player, it's a power sport. I need to be explosive, moving from one direction to the other. I need change of direction. I need agility, all the components of SNC training. More importantly, one thing about SNC training that I really like is prehab and rehab focus, which means you are preparing pre injury and you're rehabbing post injury. Now, when I'm saying all of these things, all of these components also mimic daily life. You get injured, you rehab it. You think you're getting a little bit of a pain in your knee, you start prehabbing it. Or you're like, oh, let me go see a doctor, or let me go do a little bit of physio. You need to look at something behind you. You have to rotate your body, another component of athletic performance. See, these are all things that we are going to be doing in a daily life. And the way I see it is, as an athlete, SNC is important for your sport. As a regular person, SNC is important because you want to be 80 years old and not have an issue turning around, bending down, picking up your grandkids, sitting on the toilet. I'm not saying that strength training or basic gym training doesn't have those components. All I'm saying is that you will have a higher level of athleticism and training background if you do athletic performance training instead. So, should non athletes also focus on SNC? Is that what you're I saying? I think it's a great idea. I don't see why not. Um, I know someone who trains at the same gym as me in New York. He's a 70-year-old, and I'm watching him jumping and doing box jumps and
sprinting on the treadmill, things that I don't see regular people doing at the same age, right? And it makes you wonder why. Why? Because he probably started doing SNC training at a very young age and he is being able to sustain it at a higher level by the time he's 70. For someone who hasn't done it at all, it's very difficult to do that at that age, right? Muscles deteriorate, bone deterioration, and everything else. So if you have to choose between not training and strength training in the gym, by all means, please go ahead and strength train. But if you have the option to do SNC training and you have someone who can teach it to you, then why not? यार हम जिम की बात कर रहे हैं ना, तो आजकल इंस्टाग्राम पे हर बंदा जिम गुरु है, हर बंदा नया वर्कआउट डालता है, कुछ डिफरेंट डालता है. तो अब जब मैं अगर जिम स्टार्ट कर रहा हूँ तो नेचुरल सी बात है, एल्गोरिथम मुझे वो रील्स दिखाएगा. अब अगले दिन मैं वो ट्राई करूँगा, तो मुझे क्या पता होना चाहिए बिफोर ट्राइंग दोज डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट वर्कआउट पैटर्न्स? There are two types of exercises, workouts basically. First is beginners level, second is advanced levels. Advanced levels में and maximum अगर आप reels या Instagram या even आप YouTube भी खोलोगे, 90% जो वो आपको वीडियोस दिखाएंगे वो होते हैं बहुत आई कैचिंग वर्कआउट्स कि हाँ यार ये बंदा कुछ अलग कर रहा है, कि मतलब इस मशीन पे तो कुछ और करते हैं बट ये तो कुछ अलग कर रहा है, तो हम लोग इसमें ट्राई करते हैं. बट यू नो व्हाट पीपल डोंट नो इज कि दैट पर्सन इज एन एडवांस्ड पर्सन. ही इज वर्किंग आउट, ही माइट बी वर्किंग आउट फ्रॉम 6 to 10 years प्रोबेबली. ठीक है, तभी वो उस स्टेज पे, तभी आप उसको फॉलो करके उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो. वॉट यू शुड नो इज कि आई मीन फर्स्ट बेसिक जो चीज़ होती है, आप बेसिक बिगनर्स एक्सरसाइजेस पे अगर आप अपनी यू कैन से फोकस करें, वो ज़्यादा बेटर है रैदर देन ट्राइंग न्यू वर्कआउट्स. न्यू ये जो वीडियोस होती है आई कैचिंग काफ़ी होती है बट दे आर वेरी इंजरी प्रोन. यू मस्ट हैव सीन कि लोग कितना ज़्यादा डेडलिफ्ट्स की वीडियोस बनाते हैं, कितना हैवी लिफ्ट करते हैं वो, एंड दे जस्ट थ्रो द वेट्स लाइक दैट. ठीक है, इट कुड कॉज सीरियस इंजरीज, इवन लाइफ एंडिंग इंजरीज, जो कि लोगों को नहीं पता और ऑब्वियसली इस एज पे नहीं पता लगती. See, there's a wide variety of exercises out there. So when you say fancy, everything can be a concept of fancy. Like you'll see some exercises on my page and be like, that looks fancy, but it's really not, right? So it's hard to determine what is fancy and what is not fancy. What I will say is that athletes at that stage, if they're doing exercises that look fancy to you, the reason they're doing it is because they've built enough strength and capability to do those without getting injured, right? I wasn't born with the idea of doing an archer push-up, which looks ultra cool on Instagram. I had to build that strength over the last 16 years of my life. I started going to the gym when I was 12. I'm 25 now. So it was something that I built over a long period of time. So as a beginner or someone who is a non-athlete, 100% you should be striving to do those fancy exercises one day. But I'd say until you hammer down the basics, don't even think about it. Because what that's going to do is it's going to get you in a place where either you overtrain or you do it in a way that you're not comfortable with and you lead to an injury. Once you lead to an injury, you're going to have to go back to step one. So you rather just take it slower and eventually reach there in 2 years rather than 2 months. अभी ना एवरीवन वांट्स टू गो टू द जिम एंड ग्रो बिग मसल्स, तो सबसे पहले माइंड में आता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स. तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट टेल मी यार, इज इट गुड, बैड, व्हाट रेशियो, सब बताओ. प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मसल रिपेयर एंड मसल ग्रोथ. जब आप जिम में वर्कआउट करते हो तो आपका मसल ब्रेक डाउन होता है. व्हेन यू कम बैक होम एंड यू ईट अ प्रोटीन रिच, अ होलसम नरिशिंग डाइट विच इज़ बैलेंस, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, फैट्स भी हैं, तो वो मसल रिपेयर करता है एंड बेसिकली मसल बिल्ड करता है. दिस इज़ द प्रोसेस. तो ऑफकोर्स प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है अगर आपको मसल ग्रोथ करनी है. तो आई वोंट से कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर नीडेड मतलब, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक थ्रू अ डाइट, especially
इफ़ यू आर अ वीगन और यू वेजिटेरियन तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू गेट ऑल द प्रोटीन फ्रॉम योर डाइट. तब मैं ये बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, यू कैन गो फॉर अ प्रोटीन सप्लीमेंट. लाइक आई पर्सनली मैं कंज्यूम करती हूँ प्रोटीन सप्लीमेंट बिकॉज आई फील दैट वन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट to get 24 to 25 grams of protein, 24 to 30 grams depending on what brand. You get अच्छा खासा प्रोटीन आ जाता है इन वन स्कूप. बाकी की चीज़ें आप अपनी डाइट से बैलेंस कर सकते हो. बट समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट इज दैट पीपल आर टू डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन शेक्स. लोगों को लगता है कि मुझे अपना प्रोटीन इंटेक तो पूरा करना है तो मैं प्रोटीन शेक तो ले ही लेती हूँ या ले ही लेता हूँ, बट उसके बाद अपनी डाइट फिर इट्स लाइक वही बाहर का. राइट. तो दैट इज नॉट राइट. सो देर इज़ अ मिसकंसेप्शन इन इंडिया, डब्बे वाली बॉडी है ना. सो इट इज़ नॉट जस्ट अ डब्बा. ओके, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि आपको डाइट से नहीं मिल सकता है. ठीक है, आप कितना अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पर डे का प्रोटीन इंटेक पूरा करना आपके लिए. आप कितनी ही कैलोरीज आप खा भी लोगे, मान लो कि आपने 4 मील एक अगर नॉर्मल बंदा लेता है, मैं 6 मील ले रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, मैं ले भी लूँगा, बट डू यू थिंक फिर मैं कैलोरिक डेफिसिट में रहूँगा जब मैं 6 मील्स ले रहा हूँ, है ना. तो आई थिंक दिस इज़ वेयर सप्लीमेंट्स का रोल जहाँ स्टार्ट होता है. ठीक है, एंड आई गेस अगर आप स्टार्टिंग भी कर रहे हो जिम की, अगर आपने जस्ट ज्वाइन किया है तो जो बहुत 2 बेसिक जो सप्लीमेंट्स होते हैं विच इज़ फर्स्ट इज़ प्रोटीन, सेकेंड थिंग इज़ क्रिएटिन. अगेन क्रिएटिन के बारे में लोग नहीं बताते कुछ. लोग इंक्लूडिंग ट्रेनर, इंक्लूडिंग जो भी आपके जिम वाले भैया हैं उन्हें नहीं बताते क्रिएटिन के बारे में, बिकॉज सबसे सस्ता सप्लीमेंट है एंड सबसे बेसिक सप्लीमेंट है. इवन अगर आप गूगल भी करोगे क्रिएटिन के बारे में, क्रिएटिन के ऊपर इतनी रिसर्चेस बेस्ड हैं जितनी शायद प्रोटीन के ऊपर भी नहीं हो. और प्रोटीन आपको कॉस्ट करता है 3000 समथिंग, क्रिएटिन का बॉक्स आता है आपको 500-400 रुपीज़ का. तो मतलब वो क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बहुत बेसिक आपकी जो ग्रोथ होती है बॉडी की उसमें हेल्प करता है. पर डे आपकी जो बॉडी है, इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, आपकी बॉडी 1 ग्राम क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है, 1 ग्राम मैक्सिमम. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम ही वो प्रोड्यूस कर रही होगी, 0.6 0.7 समथिंग अराउंड दैट. ठीक है, एंड वेजिटेरियन क्रिएटिन प्रोड्यूस नहीं करती वेजिटेरियन बॉडी, बिकॉज क्रिएटिन एक ऐसा यू कैन से बॉडी में सप्लीमेंट है जो कि बॉडी में 1 ग्राम तक ही मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकता है. तभी उस सप्लीमेंट को हम लोग ऊपर से ऐड ऑन करते हैं विच हेल्प्स अस इन प्रोटीन सिंथेसिस, वाटर होल्ड करने में हेल्प करता है एंड आपकी जो स्ट्रेंथ पे मेन हेल्प करता है वो, कि आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है वो. तो क्रिएटिन एंड प्रोटीन इज समथिंग विच इज़ आई वुड सजेस्ट कि हर एक जिम गोअर को स्टार्ट करना चाहिए. If you're still watching, please comment down below HWPO, which means hard work pays off. Guys, honestly, you watching till the end means a lot to me. So thank you so much and I'll see you in the next one.